Hello friends, welcome to Angel's Learning. In the previous video, we have learnt about the physical quantities. In this video, we are going to learn about dimensions of a physical quantity. As we studied that the derived physical quantities can be expressed using the 7 base quantities or fundamental quantities, or we can say that a derived quantity can be expressed as a product of different powers of a fundamental quantity. So let us try to understand this by an example. Okay. What I said is a derived quantity can be expressed as a product of different powers of fundamental quantities. For example, speed is length per unit time or distance per unit time. Distance is nothing but a length. So we can write speed as length per unit time. And we can write this as length into time inverse. Here power of length is 1 and power of time is -1. Speed is a derived quantity and this derived quantity can be expressed as product of different powers of the fundamental quantities. Here the fundamental quantities are length and time. Okay. These powers to which fundamental quantities are raised in order to express the speed is called dimension of speed. Here, this can be said that dimension of speed are 1 in length and -1 in time. These are dimensions of speed in length and time. Okay. Dimensions of speed in length and time. जो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती हैं उन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमें मास की डायमेंशन रिप्रेजेंट करनी है तो हम उसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देंगे. लेंथ की रिप्रेजेंट करनी हो तो कैपिटल L से लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसे स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं. सिमिलरली फॉर टाइम एंड अदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आल्सो. देन स्पीड. अभी हमने देखा कि हमने स्पीड को लिखा था लेंथ इनटू टाइम इनवर्स. Then this can be written as लेंथ के लिए हमने डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा L, टाइम के लिए कैपिटल T और टाइम की पावर क्या है -1. तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा LT-1. यहाँ L की पावर रिप्रेजेंट नहीं की गई, कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया, मतलब उसकी पावर 1 ही है. ओके. So this is the dimensional formula for speed. Similarly, we can write dimensional formula for any other physical quantity also. Say for example, we want to write dimensional formula for force. We studied in 9th class that force is mass times acceleration. Mass को हम लिख सकते हैं कैपिटल M. एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. चेंज इन वेलोसिटी. अब हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी हम
चेंज की बात करें या एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं दो क्वांटिटीज के लिए, वन क्वांटिटी इज वन ए एंड अदर क्वांटिटी इज बी. If we want to add these quantities, then the both quantities should have same dimensions. And similarly for the difference also, two quantities can be subtracted only if they have same dimensions. So change in velocity will also give us the dimension of velocity. So mass into change in velocities give us only velocity divided by time. Velocity is, what is velocity? Having same dimension as that of speed. Why same dimension as of speed? Because velocity is displacement per unit time. Rate of change of displacement na, and displacement is nothing but a form of length. So velocity can be written as length per unit time. So what would be the dimensional formula for velocity? Similar to that of speed. To come to the dimensional formula of force. We have seen that force is mass times acceleration, and acceleration is nothing but change in velocity. We can write here velocity per unit time, and velocity is displacement per unit time. Displacement is nothing but length per unit time. This gives us time square. And now this force, we have reduced this force to form of fundamental quantities, that is mass, length and time here. Now we have to write its dimensional formula. Here power of m is 1, length is 1 and time is -2. So this becomes the dimensional formula for force. अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि इसकी डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस फोर्स की नहीं पूछेंगे कभी भी हमसे, हमें पूछेंगे कि फोर्स के फॉर्मूला में जो मास, लेंथ और टाइम है उनकी क्या डायमेंशंस होंगी. तो फोर्स के फॉर्मूला में मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन भी 1 है, पर टाइम की डायमेंशन -2 है. तो dimension of force is 1 in mass, 1 in length and -2 in time. Okay, this is the dimensional formula for force, and this is the dimensions of force in mass, length and time. And now I want to ask that if we have to write dimensional formula for area of square, dimensional formula for area of square and for area of sphere, what would be their dimensional formula? Would it be same or they are different? Let us see. What is the area of square? We all know that area of square is side square. Side is a form of length. We can write it as length square. Its dimensional formula becomes capital L enclosed in square brackets and square. अब हमें स्फीयर का भी पता है एरिया क्या होता है. एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr². अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारा 4π है, this 4π is not a kind of mass, length and time. So 4π doesn't affect the dimensions of area. This 4π is that constant which is dimensionless. We will not consider it to find out the dimensional formula of area of sphere here. Okay, जो चीज
अफेक्ट करती है वो यहाँ पे सिर्फ रेडियस ऑफ स्फीयर ही है हमारा। अब रेडियस ऑफ स्फीयर इज अ फॉर्म ऑफ लेंथ, it is also L square. So dimensional formula for area of sphere is also L square. This is done by mistake. This 2 comes inside here. Okay. तो हमने यहाँ पे देखा कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है उसका डायमेंशन भी L स्क्वायर है, और जो एरिया ऑफ स्फीयर है उसका डायमेंशन भी L स्क्वायर है। तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो किसी भी शेप के एरिया की बात की जाए, उसकी डायमेंशन हमेशा सेम ही रहेंगी, ऑलवेज 2 इन लेंथ। एरिया ऑफ एनी फिगर हैव डायमेंशन 2 इन लेंथ ऑलवेज। अगर आपको और किसी भी फिगर के एरिया को कंसीडर करना है तो उसमें डायमेंशंस हमेशा सेम रहेंगी। Area is a physical quantity and any physical quantity have unique dimensions. Unique dimensions. They will not change if the shape of we are considering change. Okay. They remain same for all the shapes. Now, what will we do next? If we are asked to find out the volume of a cube, how will we do that? Volume of cube बतानी है हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। अभी हमने पीछे देखा एरिया के डायमेंशंस क्या थे, L स्क्वायर थे। हाइट भी किस लेंथ की फॉर्म होती है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, L क्यूब हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की भी बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखें, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई r क्यूब। इसी तरह अब जो ये 4/3 पाई है ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये हमारे स्फीयर के वॉल्यूम के डायमेंशंस को अफेक्ट नहीं करेगा। डायमेंशनलेस मतलब zero in all the fundamental quantities, having zero dimension in all fundamental quantities, that is mass, length, time, current, etc. Okay. So वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ रेडियस ऑफ स्फीयर पे डिपेंड करेगा। रेडियस ऑफ स्फीयर इज लेंथ, सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आल्सो बिकम्स L क्यूब। यहाँ से भी हमें पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी की जो भी बात कर रहे हैं किसी भी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। वो क्यूब है तो भी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम का L क्यूब रहेगा, स्फीयर है तो भी L क्यूब रहेगा। मतलब अगर हमसे कोई कहे कि डायमेंशन क्या होती है वॉल्यूम की, तो किसी भी शेप के बारे में बात की जाए तो वॉल्यूम की डायमेंशंस हमेशा रहेंगी 3 इन वॉल्यूम। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अभी हमने कुछ क्वांटिटीज को देखा, अब हम निकालने देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर क्वांटिटीज का। एंगुलर क्वांटिटीज, एंगुलर क्वांटिटीज को डिटेल में हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ उनका फॉर्मूला ही हमारे लिए सफिशिएंट है। ओके। एंगुलर क्वांटिटीज में हम कौन कौन सी क्वांटिटीज की बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क एक्सेट्रा। इन सब क्वांटिटीज की हम बात करते हैं। हम इनको डिटेल में सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमें सिर्फ अभी इस चैप्टर के अंदर ना सिर्फ फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट है डायमेंशंस बनाने के लिए। वो क्या है, कहाँ से आएंगे, ये हम पूरी +1 +2 में यही कोर्स यही है हमारा, उन क्वांटिटीज को डिटेल में स्टडी करना। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, angle in radians through which a point or line has been rotated in a specific sense about a specified axis। कोई पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेशन, कितना रोटेट किया, कितना एंगल मूव हुआ,
ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोल रहे हैं तो एंगल ऑफ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन, जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है किसी सर्कुलर मोशन में, तो वो बॉडी पहले यहाँ थी फिर वो यहाँ गई, तो इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में वो कितना एंगल ट्रेवल किया, तो ये होती है हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एंगल होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एंगल, एंड एंगल इज आर्क। हम मैथमेटिक्स में पढ़े के आए हैं कि एंगल इज आर्क पर यूनिट रेडियस। Arc is a form of length and radius is also a form of length. So, length by length gives us angle dimensionless. So, angular displacement is a dimensionless quantity. ठीक है? It doesn't depend upon any power of mass, length and time or any other fundamental quantity. Similarly, we can calculate dimensional formula for angular velocity also. Angular velocity, जैसे हमारी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अभी हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होती है, कुछ अफेक्ट नहीं करता, मतलब मास की पावर भी जीरो, लेंथ की पावर भी जीरो, टाइम पर किसी की भी पावर जीरो, हम इसे लिख देते हैं डायमेंशनलेस को 1, एंड टाइम की डायमेंशंस तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी वुड बी टाइम इनवर्स। ओके, similarly, we can calculate the dimensional formula for angular acceleration and torque also. Now, let us look at the applications of the dimensional analysis. Where we use dimensional analysis? अभी हमने जो पढ़ा है, हमने अभी तक पढ़ा है कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला? पहले उस क्वांटिटी का जो सिंपल फॉर्मूला है उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं, और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिस्पेक्टिव जो डायमेंशंस रिप्रेजेंटेशन होते हैं उन्हें यूज करके हम उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा किस लिए, हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। To find the unit of a physical quantity in given system of units, to convert a physical quantity from one system to the other, to check the dimensional correctness of a given physical relation, and to derive new relations. Okay, so let us first see how to find unit of a physical quantity in given system of units. First application हम देख रहे हैं इसकी कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कैसे पता लगाते हैं, यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला को देख के। ठीक है, जब किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो जो क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिड्यूस कर लेते हैं। अब अगर हमें उसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो रिस्पेक्टिव यूनिट होते हैं वो लिख देते हैं। जैसे हम एसआई सिस्टम यूज करते हैं तो मास के लिए हम उसकी यूनिट मीटर लिख देंगे, सॉरी मास के लिए हम यूनिट केजी लिख देंगे, लेंथ के लिए हम यूनिट मीटर लिखेंगे। एसआई सिस्टम में यही स्टैंडर्ड यूनिट्स है ना हमारी। टाइम के लिए सेकंड यूज कर लेंगे, और जो बाकी 7 है उनके लिए भी उनकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स यूज करेंगे। तो इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें पता है वर्क डन, हम वर्क डन की यूनिट निकालने की ट्राई करते हैं। वर्क डन क्या होता है? फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स हमने देखा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, पहले जो भी जिस भी क्वांटिटी की हमें यूनिट निकालनी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ता है। डायमेंशनल फॉर्मूला हम देख चुके हैं कैसे लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या था, m1 l1 and time -2 and displacement is length, so its dimensional formula would be simple l1। ये मल्टीप्लाई में है लेंथ 1, ये लेंथ ऐड हो जाएंगी इनकी पावर्स, तो हम इसको लिख देंगे m1 l2 t -2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। ओके, अब एसआई सिस्टम में हमसे यूनिट्स पूछ रहे हैं, तो हम ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनकी यूनिट्स एसआई सिस्टम वाले यूज करेंगे। अगर सीजीएस में पूछ रहे हैं तो सीजीएस वाले यूज करेंगे। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने लास्ट वीडियो में किया था, आप वहां से जाके इसे दोबारा भी देख सकते हैं। तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग हम मास की यूनिट लेते हैं केजी, लेंथ की यूनिट लेते हैं मीटर, यहाँ पे लेंथ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम -2 है तो सेकेंड -2। दिस इज द यूनिट फॉर वर्क डन इन एसआई सिस्टम। एंड इन सीजीएस सिस्टम मास इज इन ग्राम्स, length is in centimeters and time is in second. So this is the unit of work done in CGS system. अब जो SI सिस्टम की यूनिट का नाम है वर्क डन के लिए, उसे हम जूल बोलते हैं। अगर किसी को ये नहीं लिखना इतना बड़ा, तो वो साइंटिस्ट जूल ने इस वर्क डन को इन्वेंट किया था, इसलिए उनके नाम पे इसकी यूनिट जूल है। इसी तरह सीजीएस सिस्टम में वर्क डन हम अर्थ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। Now we can also convert a physical quantity from one system of unit to the other system also. Let us see how. अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसकी किसी भी क्वांटिटी की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब किसी भी क्वांटिटी के लिए उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी के लिए उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर किसी क्वांटिटी x की बात कर रहे हैं हम, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला MA/LB/TC, मतलब हमें पता नहीं वो x क्वांटिटी कौन सी, तो हम रेंडमली मान लेते हैं कि उसकी मास में डायमेंशन J है, L में B है, टाइम में C है, ठीक है। और अगर दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, हमने देखा ना कि सीजीएस सिस्टम में कुछ और यूनिट्स थी वर्क डन की, और एसआई सिस्टम में कुछ और यूनिट्स थी वर्क डन की। इसी तरह अगर इस डायमेंशनल फॉर्मूला को हमें दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग देखना है, तो मान लेते हैं कि उसकी इस सीजीएस सिस्टम में, या किन्हीं भी दो सिस्टम्स की बात कर सकते हैं हम, तो उसकी क्वांटिटी जो उसका मैग्नीट्यूड है एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो n1 है, उसमें उसका जो डायमेंशंस है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m1a l1b t1c है। और क्योंकि ये nu कांस्टेंट है, तो हम दोनों सिस्टम्स की जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड और यूनिट की, उनको इक्वेट कर सकते हैं। ये किसी दूसरे सिस्टम के अंदर उसके मैग्नीट्यूड और डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें अगर इन तीनों में से हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, भाई n2 क्या होगा, हमें ये नहीं पता कि 1 जूल इज हाउ मेनी अर्थ,
तो ये निकालने के लिए हमें अर्ज पता है, n1 पता है और ये वाली चीज पता है, दूसरे डायमेंशंस पता है, पर हमें ये मैग्नीट्यूड नहीं पता ये किसके इक्वल है। ठीक है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो इसे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। जैसे हमने वर्क डन को देखा, उसकी एसआई सिस्टम में यूनिट होती है जूल और उसकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है अर्ज। इसी तरह फोर्स की एसआई सिस्टम में यूनिट है न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में उसकी यूनिट है डाइन। ओके, हम फोर्स का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, m1 l1 t-2। हमने अभी जो फॉर्मूला देखा था, अब हमसे क्वेश्चन ये किया गया है कि आप है ना न्यूटन को डाइम्स में कन्वर्ट करके बताओ। ठीक है, मतलब 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइम्स, से x डाइम्स, वी नीड टू फाइंड x हियर। तो हमने अभी रिलेशन किया था n2 इज n1 m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a, l1 अपॉन l2 रेज टू पावर b, t1 अपॉन t2 रेज टू पावर c। यहाँ n1 क्या है हमारा 1 है, पुट कर दीजिए वैल्यू को सभी को। अब ये एसआई सिस्टम में थी और ये सीजीएस में थी, डाइन सीजीएस में। तो m1 मास क्या होता है एसआई में, केजी। मास सीजीएस में क्या होता है, ग्राम। यहाँ पे a क्या है, a फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला में a हमारा 1 है, तो यहाँ पे a1 यहाँ आ जाएगा। लेंथ एसआई में क्या होती है, मीटर। सीजीएस में क्या होती है, सेंटीमीटर। लेंथ के डायमेंशंस क्या है फोर्स में, 1। टाइम एसआई में भी सेकंड होता है और सीजीएस में भी सेकंड ही होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला में टाइम की पावर -2 है फोर्स के लिए। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, 1 kg is how many grams, 1000 grams means 10 to power 3. It is 10 to power 2, so 10 to power 5 is n2। मतलब क्या हुआ कि 1 न्यूटन is 10 raised to power 5 times। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, another way to apply dimensional analysis is to check dimensional correctness of a given physical relation। अभी हमने 2 एप्लीकेशन देखी, अभी तीसरी एप्लीकेशन देख रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, कि इसे किसी भी फिजिकल रिलेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस कैसे चेक की जाती है। तो ये चेक की जाती है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या प्रिंसिपल होता है भाई, हमने तो नहीं पढ़ा कभी। तो ये क्या प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि सपोज कोई फिजिकल रिलेशन है, ऐसा कोई क्वांटिटी x है, वो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, वो क्वांटिटीज a b c d e f के साथ कुछ इस तरह से रिलेटेड है। सपोज ऐसे ही कोई रैंडमली रिलेशन उठाया मैंने, ठीक है। अब ये रिलेशन तभी वैलिड होगा अगर इसके अंदर जो ईच एंड एवरी टर्म है इस फॉर्मूला की, इन सब की डायमेंशन सेम होंगी एंड LHS also have same dimension of RHS। ठीक है,
मतलब अभी हमने देखा था, पहले मैंने बताया था डायमेंशनल एनालिसिस कराते टाइम कि दो क्वांटिटीज ए और बी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनकी सेम डायमेंशंस होंगी। दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे यहाँ पे ए क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी में तभी ऐड होगी जब इस पूरी क्वांटिटी की डायमेंशन ए के डायमेंशन के इक्वल होंगी, ठीक है। और ये वाली क्वांटिटी भी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब इसकी डायमेंशन भी इनके इक्वल होंगी। और ये LHS और RHS भी तभी इक्वल होंगे जब इनकी डायमेंशन सेम होंगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशंस ऑफ x is equal to dimension of A equal to dimension of BC square equal to dimension of root D, E and F. Okay, this is what the principle of homogeneity tells us. I hope you got my point. अगर दोनों तरफ हर टर्म की डायमेंशन सेम है तभी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, वरना नहीं होगी। क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, जैसे हमें ये अप्लाई करना था ना कि हमें देखना था कोई फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो उसके दोनों तरफ हर टर्म की जो डायमेंशन होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे हम सिंपल सा रिलेशन लेके चलते हैं, हमने पढ़ा हुआ है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम, ये हम पढ़ के आए हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम, ठीक है। अब देखते हैं अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तब ये रिलेशन एक्सेप्टेबल है, डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशंस यूनिक होंगी। हमने देखा वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड के डायमेंशन के इक्वल, दैट इज L1t-1। तो ये दोनों तो इक्वल हैं। अब a टाइम्स t क्या इनके इक्वल है ये चेक करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, हम उसमें टाइम ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन टाइम्स टी की डायमेंशन भी वेलोसिटी के इक्वल होगी ना। ओके, तो ये रिलेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है। अब अभी तक हमने ये छोटी छोटी एप्लीकेशन देखी, अब सबसे एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन की बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, दैट इज टू डिराइव न्यू रिलेशन। हाउ टू डिराइव न्यू रिलेशन, हमें पता नहीं कि क्या फॉर्मूला होगा, तो हमें कुछ बातें पता हो तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। बट first it should be kept in mind that this is applicable only if one knows the dependency of a physical quantity on other quantities। अगर हमें पता होगा कि कोई क्वांटिटी किन्हीं दूसरी क्वांटिटीज पे किस तरह से डिपेंड कर रही है, तभी हम उसका नया रिलेशन बना पाएंगे। एंड इफ डिपेंडेंसी इज ऑफ प्रोडक्ट टाइप, और डिपेंडेंसी भी कैसे होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रोडक्ट के फॉर्म में होनी चाहिए, बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गई ना तो हम उसका न्यू रिलेशन नहीं डराइव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। ये एक मतलब हमें इसके लिए एक एग्जाम्पल तो समझना ही पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के ये समझ में आने वाली बात नहीं है। जैसे मैं अब फॉर्मूला डिराइव करना चाहती हूँ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए। सिंपल पेंडुलम का क्या टाइम पीरियड होता है इसके लिए, लेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बी अ फंक्शन ऑफ, मान लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो किस किस का फंक्शन है, मास ऑफ बॉब। बॉब क्या होता है,
ये सिंपल पेंडुलम है हमारा, ये इसकी वायर है जिससे ये एक बॉब अटैच है। इस बॉब का जो मास है वो m है और इस वायर की स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो स्मॉल l है। ठीक है, इसके लिए हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो जो ये इसका टाइम है, वो टाइम पीरियड है, वो डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इस बॉब का मास क्या है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग की इफेक्टिव लेंथ कितनी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। ठीक है, पर अभी हमें ये नहीं पता कि वो इनकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लेते हैं कि वो इनकी टाइम मास की a पावर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की b पावर पे डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की c पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो कलेक्टिवली इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं, इट इज ma टाइम्स lb टाइम्स g। ओके, अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम एक डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट लिख देते हैं k। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें इन सभी टर्म्स की, k डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, इन सब की डायमेंशंस लिख देते हैं, टाइम की टाइम, मास की m a पावर पे डिपेंड कर रहा है ना इसलिए एल बी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो या किसी चेंज इन वेलोसिटी की वजह से हो, सेम ही डायमेंशंस रहेंगे, दैट इज एल टी माइनस टू L1 t माइनस टू पावर c। तो हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दें, m a l b प्लस c t माइनस टू c। ओके, अब हम दोनों तरफ सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को इक्वेट कर देते हैं, LHS और RHS में हम डायमेंशंस इक्वेट कर देते हैं। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। तो अब मास की डायमेंशंस क्या है, RHS की तरफ A और LHS में 0, सो A इज 0, लेंथ की RHS में B प्लस C एंड LHS में 0, टाइम की माइनस टू C इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें C मिल जाएगा -1/2, जब यहाँ पुट करेंगे C की वैल्यू तो हमें B मिल जाएगा 1/2 और A हमें 0 मिला ही हुआ है। A 0 होने का मतलब क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब। ठीक है, तो T इज इक्वल टू K टाइम्स M0 L पावर हाफ G पावर माइनस हाफ और T is equal to K times under root L by G. This is the relation for time period of simple pendulum. So this is all about the application of dimensional analysis. In the next video, I will discuss some previous year NEET and advanced question asked from dimensional analysis. Thank you.